Of course, as you all would know, in Allahabad, Prayagraj now was one of the most important events for our country and very proud moment for our country, and he was the district magistrate. He actually gets himself into the most challenging postings. And when I went, where we were doing a medical camp, which was again a very big hospital called Netrakum, and I went to Suhas and I discussed this thing. And he was there to, in fact, give us every kind of support. And just by the way, just at the passing reference, he just mentioned that he is a player. I said, how is it possible? It's just not possible. He could be just a player, but not to that level that he's going to win Olympics one day. But he was all around with the files he was literally revolutionizing that city of Allahabad, Prayagraj and Kumbh, which makes, he has such a huge role to play in creating a success of that. Nonetheless, it happened, the event went off very well, and he was posted out, he went to Lucknow. And one fine day you hear that the DM Noida is Suhas. And I called him up and I thought that he was preparing for Olympics. He says this is a bigger duty, and this duty was the COVID duty. I thought he must have given up on his Olympic dreams. And I, under no circumstance, I'm a doctor, and Dr. Mehta is sitting here, and we created a couple of hospitals during, and of course Hamid is here too. And in our little, very small form, we were trying to help the society and trying to do. And this gentleman was in the helm of affairs of actually the most difficult thing. In fact, Noida controlling during the COVID time was absolutely impossible, and he did such a fantastic job. He has become more doctor than I am. He would call up at any time and say that, why is this medicine like this? What is the protocol? And he would discuss with me. I didn't realize that he's not a medico. He would discuss with me as if like he's a fellow colleague, a doctor. And the protocol, and where we couldn't find any help, we would just call him up, and he was always ready any given point of time, and he was preparing for Olympic. I said, when do you play? He says that I play maybe after 11 o'clock in the night until 3 in the morning. When Yogeshwar was actually contesting for London and for Rio Olympics, that is the time when we realized that how difficult it is to qualify, leave aside getting a medal, when the whole world is competing, and even to qualifying at the international standards to reach where they have reached. In fact, I have such huge salutations for all of them, even to qualify, leave aside getting a medal. And I told Suhas, like I didn't have heart to say whether you've qualified or you're not qualified. And he says, yes, I have in the ranking, the world ranking, I have qualified. I'm just waiting for the announcement to happen. And he just went there for 1 week. He went there, he played, and he conquered. And that's it. While he was talking Noida, while he was talking his work, and he was doing Olympics, Paralympics, preparing. And that is the humility of our players. And Yogeshwar is, very few would know, to compete in such a competitive weight category and to continue competing for 16 years. Yogeshwar has played 4 Olympics. And to maintain the discipline. And these are the people who have to be in their weight category for 16 years. And to compete and to win and to show way to younger athletes like Bajrang and Ravi, they have become their role model. That is amazing. In fact, I really give full credit to Yogeshwar that to actually open up the field of wrestling to our players and to take a lot of inspiration from him is a big thing. Bajrang, I have known him as a kid. He's grown up to become a world champion. He has grown up to become an Olympic champion. And he had knee surgery. In fact, just a month and a half back, I spoke to his doctor, Dr. Tinshaw Patiwala, and he says there is no way he can compete. He thought that he will not be able to be on the mat. He played.
and he played so good. Literally, I have seen Bajrang to grow in such a responsible athlete. And Bajrang is a true disciple of Yogeshwar Dutt. He trained him to reach, he substituted Yogeshwar's category and reached and won the medal. So that is a big tribute of Bajrang to Yogeshwar. And Ravi Dhaya. People didn't know who Ravi Dhaya is. Absolutely quiet. So good thing is that people did not have too much hopes, but he knew that he had to play very well. I asked Yogeshwar, I said, how is he going to perform? And Yogeshwar said, Didi, ye to medal lekar aayega. I thought maybe he never knew. I thought he qualified to get the round, but imagine what confidence, what strength that he displayed on the mat. I remember all of us in the office, we were sitting and we were watching, in fact, in our boardroom, we were watching Ravi Dhaya's bout. And I get a call from Nitin, ma'am, we got a silver medal. It was such an amazing thing. You feel so proud that your own children have grown to that level to bring medals to the country. In fact, I am extremely proud to be associated with them. I'm extremely proud to be associated with an organization which is Religare, which is so proud and want to participate and stand by our athletes today and forever. Thank you very much. Thank you, ma'am. We'll continue with our invite our guests and welcome them. And in this process, I'll again request Mr. Rajesh, Mr. Pushpinder Singh to kindly escort Miss Prashanti Singh. Arjuna Award in 2017. She has also been awarded the prestigious Rani Lakshmibai Bevri Award in the field of sports by Government of Uttar Pradesh. Prashanti represented the national team at 2006 Commonwealth Games, 16 Asian Games, 2010 and 17 Asian Games in 2014. Thank you so much, ma'am. I will take this opportunity to request our chief guest and Mr. Suhas LY to kindly welcome our executive chairperson, Dr. Rashmi Singh. I'll request Jitika to kindly come and escort her. Dr. Rashmi is a doctor and entrepreneur. She is an MBBS, MD and MBA Finance, LLB and PhD by qualification. Dr. Rashmi has administrative experience of more than 25 years, setting up institutions and being involved in the social and charitable activities. She is Executive Chairperson of Religare Enterprises Limited, the holding company of Religare Group. Dr. Rashmi also serves as a Chairperson and Managing Director at the Religare Fininvest Limited. She is also a non-executive chairperson of Care Health Insurance, Religare Broking, Religare Housing Development Finance Corporation Limited. And Dr. Rashmi has led the Religare Group from the front to the challenging time to rebuild the strong and integrated financial service group. A big round of applause for Dr. Rashmi. Thank you, ma'am. Thank you for being here. I now request Mr. Mayur Dwivedi to kindly escort Mr. Malay Kumar Sinha, Board of Director, Religare Enterprises, and request our Executive Chairperson to kindly welcome him. Mr. Sanjeev Meghani is requested to kindly escort Mr.
सभी को नमस्कार। और बोलने का तो कुछ रहा है नहीं भाई साहब, सबसे 1 घंटे से क्योंकि हर खिलाड़ी की लाइफ मेरे हिसाब से संघर्ष सेम ही होता है। तो भाई साहब ने जो लाइफ का जो संघर्ष बताया वो हर खिलाड़ी का सेम ही होगा। तो मैं मुरली मनोहर जोशी जी का और मैडम रश्मि का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ बुला के हमें सम्मानित किया। और काफ़ी अच्छा लगता है जब खिलाड़ियों को ऐसे सम्मानित करते हैं, और ऐसा लगता है कि भाई एक जिम्मेवारी और बड़ी है हमें देश के लिए और बहुत सारे मेडल जीतने हैं। I now invite Mr. Yogeshwar Dutt to kindly come and share his thoughts about Kabaddi World. सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर रश्मि दीदी, भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी मेहता जी, पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट सुहास जी, रवि दया, बजरंग पुनिया और यहाँ जितने भी सभी पधारे हैं सबको मेरी राम राम। वैसे तो सब कुछ बता दिया खिलाड़ी के बारे में कुछ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बाद में बोलने वाले को कुछ नहीं मिलता बोलने का। एक खिलाड़ी का जीवन बहुत संघर्षशील होता है। जीवन वैसे सभी का संघर्षशील होता है, चाहे कुछ बनो चाहे ना बनो। इस धरती पे पृथ्वी पे अगर हमने जन्म ले लिया तो जब तक हम पृथ्वी पे हैं हमें संघर्ष ही करते रहना है, और इसी का नाम जिंदगी है। किसी खिलाड़ी का बचपन से ही एक संघर्ष स्टार्ट होता है। जैसे मेरी उम्र जब 6 या 7 साल की, जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की मिट्टी में खेलते खेलते 1996 में लीडर पेश का ब्रॉन्ज मेडल आया था। तब मेरे को पहली बार पता लगा था कि ओलंपिक क्या होता है। मेरे पिताजी ने बताई थी कि देश के लिए मेडल लेगा, एक ही मेडल लेगा आया। उससे पहले मैं कुश्ती करता था, बस यही था कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। ये भी नहीं पता बड़ा कैसे बनते हैं। मेरे गाँव के बलराज पहलवान थे। तब से मेरे मन में थी मेरे को ओलंपिक मेडल जीतना है। वो सपना 1996 में देखा, मेरा 2012 में पूरा हुआ। खिलाड़ी के लिए इंजरी भी बहुत होती है और आर्थिक तंगी भी बहुत होती है, और तकरीबन खिलाड़ी गांव देहात से आते हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष का उनको सामना करना पड़ता है। पर मैं आपसे भी और सुभाष जी आपकी भी माइक पे, क्योंकि शायद खेल की उम्र में मेरी बहुत ज्यादा है आपसे। मैंने 25-26 साल तक रेसलिंग की है। सुभाष जी ने बोला कि 2024 में मैंने गोल्ड छीनना, उसके लिए से इस बार आ रहे हैं। पर नहीं, आपको 2024 ओलंपिक में गोल्ड जीतना चाहिए, कोई भी खिलाड़ी हो। 1% अगर वो खिलाड़ी ना आया तो फिर किसे चुनोगे? तब फिर हमें सिर्फ जीतने के लिए मेहनत करनी है, किसी को हराने के लिए नहीं। क्योंकि यह चीजें बाद में मैंने बाद में सीखी थी। बोलते हैं ना कि एक हरियाणा कहती है लुट पिट के सब कुछ मिल रहा है, संभले हम। जिस खिलाड़ी के लिए हमने तैयारी की वो आए नहीं टूर्नामेंट में, उसको कहाँ पकड़े। अभी तो ओलंपिक के 3 साल हैं, बहुत उल्ट फेर होंगे, नए खिलाड़ी आएंगे, जूनियर भी निकल जाएंगे। बस हम एक ही सपना मन में है, भी सभी के मन में है। और जो एक खिलाड़ी एक ओलंपिक टारगेट बनाता है उसके मन में एक ही सपना होता है कि देश के लिए गोल्ड जीतना। एक बात और बताऊं, मैंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, क्योंकि मैंने तैयारी 1996 से मेडल के लिए तैयारी की। मैंने गोल्ड के लिए तैयारी नहीं की। मैंने देखे ब्रॉन्ज मेडल था लिंडर पेश के हाथ में। मैं तो कहीं मजाक में बाबूजी बब्बा जी मजाक में बोलता हूँ कि ये मेरी गलती नहीं, मेरा गोल्ड नहीं आया। गोल्ड गलती है, लिंडर पेश की ब्रॉन्ज ले गया। तो मैं गोल्ड के लिए मेहनत करता। इसलिए आप सभी, और एक बात और, हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप खिलाड़ी बनो, ओलंपिक चैंपियन बनो, वर्ल्ड चैंपियन बनो। और हमें देख के तो खिलाड़ी है, और सुहास जी को देख के तो आदमी IAS IPS बच्चा, अगर आप तो कहाँ सपने देखो IAS छोटे बच्चे, इनको देख के IAS का सपना भी देख सकते हैं, ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना देख सकते हैं। ये 2 in 1 है। और दो एक बात और
इन्होंने एक बात और बोली कि तीसरा क्या करूं, तीसरा एक बहुत आसान चीज है, इसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाना। मैं 2009 में डीएसपी लगा, 2019 तक मैं 10 साल में डीएसपी जॉब की, खिलाड़ी बनाया, उसके बाद जॉब छोड़ के बब्बा के आशीर्वाद से पॉलिटिक्स में है। अभी कुछ इसमें ज्यादा मिला नहीं है, पर मिलेगा, मेहनत करेंगे तो लोगों की सेवा के जरूर मिलेगा। वो एक बात और, प्यार की पहला प्यार बैडमिंटन है, और वो जो किसी भी चीज से प्यार करता है मुश्किल से मिलता है। वो मेरा भी कुश्ती था, बहुत मुश्किल से मिले, 5 ऑपरेशन हुए। प्यार आसानी से मिलता, किसी भी चीज के लिए आप प्यार, किसी से प्यार करोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, और तो आसानी से मिल जाए वो उसका मजा भी नहीं आता। इसलिए आप संघर्ष कीजिए, किसी भी फील्ड में हो। कामयाबी जब संघर्ष से मिलेगी तो उसका अलग मजा होगा, बताने में मजा आएगा, अपनी कहानी बताने में मजा आएगा। रवि दैया है, बिल्कुल जूनियर है, शायद 22 साल का है, छोटा सा हमारे पास आता। किसी को भविष्य में क्या छिपा है नहीं पता, इसका भी नहीं पता था, हमारा भी नहीं पता था कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। ये गुड़िया बैठी है, इसका भी नहीं पता ये आने वाले टाइम में क्या बनेगा, ये बनेगी, खिलाड़ी बनेगी या फिल्मों में जाएगी क्या। अब तो 2 in 1 तो ये है, अब तो 3 in 1 होना जरूरी है। 2 in 1 तो हमारे सामने बैठे हैं, जब तो तभी बात बनेगी जब 3 in 1 हो। इसलिए संघर्ष करो बस, और अपने काम पे सच्चे दिल से मेहनत करते रहो। रश्मि दीदी हैं, और एक बात मैं बताऊं कि यह पता लगा कि मेरी ये रैली गेयर कंपनी है, को ये समझ में है क्या। आज इसमें कई चीजें और लिखी हुई है कि ये लोन भी है, उन लोन भी है। सभी दीदी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत, मतलब मेरी एक दीदी लगाओ मार की तरह सब कुछ है, बहुत है। पर ये चीज बताते हैं कि इंसान के अंदर कितनी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, और समय समय पता लगता है। आज एक ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आज पता लगा हमें। कोई अगला प्रोग्राम होगा उसमें कोई नई कंपनी और लिखी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yogeshwar ji for showing us such a different path to our Olympians and to the audience, and sharing your such an interesting stories with us. I now invite Mr. Ravi Dhaya to share his remarkable journey from small town of Haryana to Tokyo 2028. सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और मैं तो क्या बताऊं, तुम तो जब छोटे से थे तो पहलवान जी के पास आए थे, पहलवान जी पे तो हम सारे जितने भी ओलंपिक में हमने सबने मेडल जीते हैं, तो हम सभी एक ही जगह के सारे रेसलर हैं। तो मैं 2007 में छत्रसाल स्टेडियम में आया था, 2008 में ओलंपिक गेम्स थे, तो उस टाइम तो पता भी नहीं था ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं। और संघर्ष की बात तो पहलवान जी से ज़्यादा कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि कितने 4-5 तो शायद ऑपरेशन भी हो रहे हैं और लगातार इंजरी में रहे हैं, उसके बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना। और एक सपना जो हमने पहलवान जी से सीखा ना, वो कि चाहे कितनी भी इंजरी हो, एक ओलंपिक का मेडल का जो सपना था पहलवान जी का 2007 से हम देख रहे थे। 8 में काफी बहुत क्लोज थे, और पहलवान जी गए थे साथ में, और साथ में सुशील कुमार, दोनों एक साथ गए थे, तो दोनों से काफी उम्मीदें थी। तो उस साल पहलवान जी का सपना शायद नहीं पूरा हो पाया, पर फिर इसके बाद इंजरी, फिर सर्जरी होना, तो उससे देखा हमने सीखा है कि एक सपना क्या होता है, उसके पीछे जिस तरीके से लगाया जाता है, तो वो एक अलग चीज थी। तो संघर्ष तो एक जिंदगी का हिस्सा है, पहलवान जी से देख देख के हम सीखे काफी। तो कोशिश करते हैं जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं करने की। हमने भी देखा तो सबने बस एक ही बात बोली हमें, तो भाई देखो अपने से जो बड़े हैं उनसे सीखो। तो इसी तरीके से सीखते सीखते आगे बढ़े हैं, और कोशिश करते हैं अब की बार देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, अगली बार गोल्ड के लिए पूरी तैयारी करेंगे। Thank you, Ravi ji. I would now request our special guest, Secretary General, Indian Olympic Association, Mr. Rajiv Mehta, to kindly
come on stage and say a few words of inspiration to our Olympians. Honorable Chief Guest of this function, Dr. Murli Manoj Joshi ji, our dear friend Dr. Rashmi Saluja ji, Executive Chairperson of the Delhi Care Enterprises Limited, our star of the Olympic and Paralympic, सुहास जी ने जो भी आपको स्पीच दी, मैं सोचता हूँ सभी बिंदुओं में आपसे बात करी, कैसे कैसे उनका जीवन का संघर्ष रहा और कैसे कैसे वो आगे बढ़े। मैं सोचता हूँ कि आगे जो उनका एक संकल्प है 2024 ओलंपिक का, वो जरूर उनका पूरा होगा। जिस तरीके से उन्होंने डिटर्मिनेशन बना रखा है गोल्ड मेडल के लिए, वी आर बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। हमारे बीच में रवि दहिया जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया कुश्ती टोक्यो में जीती। आई वॉज ऑल्सो देयर इन टोक्यो। जो उनका बाउट था वो जीतते जीतते हारते हारते दोबारा जीता इन्होंने। वो लास्ट मोमेंट में जो उन्होंने दांव खेला है, मैं सोचता हूँ कि वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए एक हमारे बीच में बजरंग पुनिया, जिन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। और रेसलिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि रेसलिंग लगातार 2008 से 2020 तक लगातार ओलंपिक में मेडल ला रही है। दिस इज ओनली वन फेडरेशन, ये डन एक्सीलेंट जॉब इन ओलंपिक। मैं सोचता हूँ कुछ ही फेडरेशन हैं जो इंडिया में अच्छा कार्य कर रही हैं। उस पर टॉप 5 में कुछ फेडरेशंस आती हैं। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, हॉकी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो उसमें रेसलिंग जिसका अगर परफॉर्मेंस देखते हैं 2008 से, तो लगातार मेडल टैली में आ रही है, जिससे हम महसूस करते हैं कि आगे भी रेसलिंग इस कंट्री में बढ़ेगी, गांव-गांव में जाएगी। और कई जगह तो हमारे इंडोर स्टेडियम नहीं है, कई स्टेट में, कई ब्लॉक में नहीं है। अभी हमारी जो स्कीम्स है साई की, वो हर ब्लॉक में एक 9 करोड़ का इंडोर स्टेडियम दे रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वो हर स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर स्टेट के उसको लागू कर रहे हैं। और हर ब्लॉक में अगर हमारा इंडोर स्टेडियम होता है, तो हमारे जितने भी इंडोर गेम्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे और हमारा जो मेडल टैली है वो जरूर बढ़ेगी हर मेगा इवेंट्स में। 2021-2022 में 3 हमारे मेगा इवेंट्स हैं, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, मार्शल आर्ट गेम्स। तो मैं सोचता हूँ मेडल टैली में इस साल फिर इंडिया टॉप 5 में आएगा, मैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ तक रेलिगेयर कंपनी का मुझे मानना है, इनका हमेशा डॉक्टर रश्मि का सपोर्ट रहा। ओलंपिक के हर मूवमेंट में इन्होंने हर चीज़ में मेरे से डिस्कस किया है टेलीफोन में, और मॉरल बूस्टिंग करते रहे मुझे, मैडम, कि आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है तो रेलिगर आपके साथ खड़ा है। तो मैं सोचता हूँ आगे भी ओलंपिक में डॉक्टर रश्मि हमें सपोर्ट करती रहेंगी, हर तरीके से सपोर्ट हम करते हैं। कई पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो कई पॉलिसीज़ का फ़ायदा है अगर हमारे खिलाड़ी लेते हैं, तो हमारे लिए मेडल टैली जरूर बढ़ेगी। मैं सारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमारे, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया इस ओलंपिक में, हमने कोशिश करी जितने भी मेडल टैली में प्लेयर आए उनको हमने अच्छा प्राइज दिया आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द टोक्यो ओलंपिक। और हम उस राशि को डबल करना चाहते हैं 2024 के ओलंपिक में, जितना भी हमने उनको पैसा दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, उसके साथ साथ आप लोग यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ आगे बढ़िए, कुछ CSR का फ़ायदा आप खिलाड़ियों को दीजिए। हमारे खिलाड़ी जिस परिस्थितियों में खेल रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हर किसी के पास कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं है। ये जितने भी खिलाड़ी आपने इनका नाम सुना, जिन लोगों ने मेडल लिया है, वो अपने दम में आगे बढ़े हैं। सरकार ने तो उनकी मदद करी है आफ्टर टॉप स्कीम में आने के बाद। उससे पहले वो जितना प्रयास किया, उनके परिवार ने
सपोर्ट किया, उनके मदर फादर ने सपोर्ट किया, उनके रिश्तेदार ने सपोर्ट किया। एक मैदान में आने के बाद प्लेयर्स को पैसा मिलना चालू होता है और एक बहुत टफ लाइफ है इनकी। जब वो जीते हैं ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ जी पाते हैं। दिन भर 24 घंटे उनका प्रैक्टिस करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप बोलते हैं सुहास जी को तो ये दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल फॉर द स्पोर्ट्स कि इन्होंने एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोएडा में काम किया और अच्छा काम करने के साथ साथ एक मेडल भी हमारी कंट्री के लिए लेके आए। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कंट्री के लिए। अगर ऐसे ही अधिकारी हमारे बीच में रहेंगे तो हमारा मेडल टैली और ज्यादा बढ़ेगा। मैं सोचता हूँ रैली गेयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले ओलंपिक में ओलंपिक का पार्ट बने और एक अच्छे पायदान में हमारे खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए आगे आएं। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रॉमिस यहां से लेते हुए जाऊं अपनी चेयरपर्सन से। मैं सभी खिलाड़ियों से और हमारे इंस्पेक्टर्स जो यहाँ पे आए हैं और आप जो ऑफिशियल यहाँ बैठे हैं, मैं सबको उनकी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले ओलंपिक के बाद हम मिलेंगे और अच्छे मेडल टैली के साथ, अच्छे स्कोर के साथ और मिस्टर सुहाग के गोल्डन मेडल के साथ आपके साथ बात होगी। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your kind words. And I hope whatever you have asked for, there are many, many people, those who are resourceful and will definitely look forward to it. Now I request Ms. Prashanti Singh, Indian National Women Basketball Team player, to kindly come on stage and share her thoughts, her journey about this. Hello everyone. First of all, thank you for calling me here और मुझे फेलिसिटेट करने के लिए। और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मुझे नहीं पता है कि मैं आज यहाँ पे बात करने वाली हूँ और आई एम नॉट रियली गुड स्पीकर। अभी सुहास जी ने और योगेश्वर जी ने जैसा समा बांधा था वैसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती। सो आई एम अंडर प्रेशर। सो एंड अब ये अभी तक जितनी भी बात हुई है सारी इंडिविजुअल स्पोर्ट की ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे। सिंस आई एम अ टीम स्पोर्ट प्लेयर तो मैं बोलूँगी टीम स्पोर्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और वेरी डिफरेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे आप अपने साथ साथ बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक कंबाइंड एफर्ट होता है। सो रिजल्ट बहुत टफ है और अगर ये क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री में अगर स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है तो इट इज़ मतलब ये एक कंबाइंड एफर्ट ही होता है। स्पोर्ट्स कल्चर के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि वी कैन लाई ऑन सर्टेन कि कुछ स्पोर्ट पे या कुछ इवेंट्स पे हो सकता है। ये जब स्पोर्ट्स कल्चर वाली जो कंट्रीज़ होती हैं उनके यहाँ ऐसा माहौल होता है कि वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए, कमर्शियल अप्रोच के लिए हर तरह से स्पोर्ट्स का एक माहौल होता है उस देश में। किसी भी डेवलप कंट्री में देखिए तो it's just not कि they prepare for only Olympic sport और या फिर जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनका डे टू डे लाइफ में ही स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और कमर्शियल अप्रोच होता है और सब लोग वेल टू डू और अपने आप खुद ही ना लाइक ज़्यादातर स्पोर्ट्स सेल्फ एफिशिएंट होते हैं। उनकी फंडिंग के लिए उनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वी आर गेटिंग देयर, पर उस चीज़ पे जाने के लिए, वहाँ तक आने के लिए अगेन वहाँ पे एक टीम स्पिरिट और टीम एफर्ट की ज़रूरत होगी जिसमें कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और समाज के सभी वर्गों को साथ में आना पड़ेगा। तो अगर स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है तो जहाँ जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स परस्यू करने के लिए अलाउ करने से ले करके और कहीं भी किसी भी CSR, जैसे राजीव मेहता जी ने बोला कि CSR को आगे आना चाहिए, वो भी और पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे हो सकता है डॉक्टर्स हो, तो अगर आपके पास कोई एथलीट आता है तो प्लीज़ उनको प्रायोरिटी पे हेल्प करिए और जितना ज़्यादा लाइक क्योंकि मेडिकल इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ, तो हेल्प देम बहुत ही अच्छे तरीके से और कम पैसों में। सो हर एक इंसान हर जगह कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो स्पोर्ट्स वी नीड अ टीम एफर्ट, सो बी द पार्ट ऑफ द टीम एंड थैंक यू वेरी मच। Given us a huge responsibility, so my responsibility is going to be shifted to Anuj, Nitin, Pankaj and Rahul. I hope please pray that Relegate does very well, so we do a lot of profits, our CSR goes higher and higher. But the
this is a commitment that our CSR will be very prioritized way we will participate in sports, and especially the Olympic sports.